Good morning, everyone. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. First of all, I would like to thank God for this wonderful opportunity that God has granted to me. सर्वप्रथम मैं तो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, सुंदर समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है। And I also thank Reverend Dr. Matthew K. Thomas and Madam for giving me this privilege. और उसके बाद मैं रेवरेंड डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस और मैम को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। Indeed, it is my great privilege to stand before you in this morning with the living Word of God. ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर के जीवित वचन के साथ आपके सामने खड़े होने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में एक अवसर दिया। Thank you everyone for your prayer and support. आप सबों की प्रार्थना और सहयोग के लिए धन्यवाद। At the same time, I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और उसी प्रकार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। Well, these days in many churches, worship become formalism. इन दिनों में बहुत सी कलीसियाओं में औपचारिक आराधनाएं देखने पाते हैं Or ritual system. या फिर एक पारंपरिक रूप से होने वाली आराधना, Just to attend the service and go back. बस यही है कि आप चर्च आओ और वापस चले जाओ। These days people come to the church to please the pastor or to the leaders. इन दिनों में जो विश्वासी या लोग चर्च में आते हैं वो या तो पासवान को या फिर अगुओं को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। Because think that when they come to the church, then God will please. तो ये सोचते हैं कि अगर वो ये चर्च में आएंगे और ये सारी बातें करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। But Bible does not say this. लेकिन बाइबल इस प्रकार नहीं कहती है। When we look at the first Samuel, we see there that God does not look at our appearance. यदि अगर हम पहले शमूएल की पुस्तक में देखें तो परमेश्वर जो है हमारे उन प्रकार की बातों को नहीं देखता, But God look at the heart. लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। In the Psalm number 15, we see what was happening in the life of the Israel. हम भजन 115 में देखते हैं कि उन इस्राएलियों के जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा था। This morning we are going to learn from the Psalm number 50. Please turn with me Psalm number 50. इसलिए आइए आप मेरे साथ में भजन 50 में चलिए। From this Psalm number 50, we are going to learn what God wanted to teach us this morning. और हम भजन 50 से यह सीखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। From this, for better understanding of this psalm, I would like to entitle as God's judgment upon His people for formalism in worship, hypocrisy and living. और इस भजन को मैंने इस प्रकार का एक शिक्षक दिया है कि परमेश्वर हमारी उन औपचारिक और उन आराधनाओं के साथ में किस प्रकार व्यवहार करता है। I shall repeat. God's judgment upon His people for formalism in worship, hypocrisy and living. और परमेश्वर न्याय करता है हमारी औपचारिक और ये कहना चाहिए पाखंड की उस वर्शिप में या आराधना में। As you know that this psalm is written by Asaph, a leading Levite musician. आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार ये भजन जो है यहाँ पर में लिखा गया है। In this psalm, Asaph describes that Lord will examine our worship. और यहाँ पर में ये कहा गया है कि परमेश्वर हमारी आराधना को परखता है, जांचता है। Or Lord will examine His people. या फिर परमेश्वर अपने लोगों को जांचता या परखता। And this psalm also we can learn that also declare that God has commented against sins of His people. और इस भजन में परमेश्वर ने अपने लोगों के अपराधों के प्रति, पाप के प्रति जो कहा गया है। One is formalism in worship, to whom worship is just a ritual. एक वो है जो औपचारिक आराधना है। And then verses 7 to 15 we see the verses 16 to 21 we see the hypocrisy in living, to whom worship is to cover their sin. और 16 से लेकर तो 20 तक हम ये देखने पाते हैं कि पाखंड पूर्ण जीवन व्यतीत करने के संबंध में। And the last part we see the psalm closes with a call all the worshippers to worship to be the faithful or to worship truth and spirit.
और फिर अंत में हम इस बात को देखने पाते हैं कि आत्मा और सच्चाई के साथ में प्रभु की आराधना। And I have divided this psalm into 4 parts. और मैंने इस भजन को 4 भागों में विभाजित किया है। First one, पहली बात, God will examine our worship, verses 1 to 6. 1 से 6 में यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हमारी आराधना को जांचता या परखता है। Lord is against formalism worship, verses 7 to 15. और 7 से लेकर 15 तक परमेश्वर जो औपचारिक आराधना है उसके विरोध में रहता है। And the third, Lord is against hypocrisy in living, verses 16 to 21. और 16 से लेकर 21 तक परमेश्वर एक पाखंडपूर्ण जीवन व्यतीत करने के विरोध में रहता है। And last one, this is 4, it is the Lord will bless a true worshipper. और चौथी बात जो उन अंतिम आयतों में है, परमेश्वर एक सच्ची आराधना को आशीषित करता है। It is verses 22 to 23. और वो जो है 22 से लेकर तो 23 तक। Now we'll see one by one. एक के बाद हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। First one is God will examine our worship. पहली बात, परमेश्वर हमारे आराधना को जांचता या परखता है। In the verse 1 it says, Psalm number 50 verse 1 it says, the mighty one, God and the Lord has spoken and called the earth from the rising of the sun to its going down. पहली आयत में लिखा हुआ है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। Here the voice of our psalmist displaying the wisdom or majesty of God, who God is. यहाँ पर में भजनकार जो है वो परमेश्वर की महानता को प्रस्तुत कर रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर कौन है। And this psalm we see that God will call everyone who is made covenant with Him. और परमेश्वर इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर उन हर एक को बुलाता है जो उसकी वाचा के अंतर्गत बंधे हुए हैं। He said, I will not keep the silent. वो कहता है कि मैं भी खामोश नहीं रहूंगा। He shall call upon all people. This is who are made covenant with God. This is His people. और कहता है कि ये उसके लोग हैं जो उसने बनाया है, वो उनको बुलाता है। And verse 4 last part it says that what He says, He will judge His people. और अंतिम बात में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों को जांचता है, परखता है। And He says, verse 5, gathering my saints together to me, and those who have made covenant with me by sacrifice, let the heavens declare His righteousness, for God Himself is just. और 5 बात लिखा हुआ है कि मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। 6वां आयत, स्वर्ग उसके धर्म होने का प्रचार करेगा क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। Friends, as we see here, God is going to examine who we are and what we are. मित्रों, यहाँ पर भी परमेश्वर हमें जांचता है, हमें परखता है कि हम कौन है और क्या है। And in 1 Corinthians 5, 8 to 9, we see that we are going to appear before God. और पहला कोरिन्थियों 5, 18 और 19 के अनुसार 8 और 9 के अनुसार we see here that God, we are going to stand before God. वहाँ लिखा हुआ है कि हम सब परमेश्वर के उपस्थिति में या उसके सम्मुख में खड़े रहते हैं। Can you read? क्या हम उसको पढ़ सकते हैं? पहला कोरिन्थियों 5, 7 और 8। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की खमीरी रोटी से। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। 2 Corinthians, can you see again? दूसरा कोरिन्थियों 2 Corinthians 5 verse 9 and 10. You read 9 and 10. 2 Corinthians. इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाथ मसीह के न्याय आसन के सामने टूट जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। Thank you. So he says that whether we are present or absent, to be well pleasing to Him. That means we have to please whatever we do. We have to please because we are going to stand before God one day, whatever we do, good or bad.
यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि चाहे हम साथ में रहे या अलग रहे, हम चाहे कहीं भी रहे, हम उसको प्रसन्न करते रहे, क्योंकि हमारा न्याय जो है उसके सिंहासन के आगे है। Because our God is righteous God. क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। Let's go to the next point. It is Lord is against formalism worship. और अब हम दूसरे हमारे बिंदु में जाएंगे कि परमेश्वर हमारी औपचारिक आराधना के साथ बर्ताव करता है। Verses 7 to 15. 7 से लेकर 15 भजन 7 से लेकर 15 के इन आयतों में लिखा हुआ है। There was a boy. एक बालक था। So he usually attended the Sunday school service. तो वो हमेशा संडे स्कूल में आया करता था। And then he learned from the Sunday school teacher that whenever you wake up or eat food or sleep, you have to pray. और वो अपने संडे स्कूल की जो टीचर थी उनसे सीखा करता था कि जब कभी तुम उठते हो, जागते हो, खाते हो, तुम्हें प्रार्थना करना है। So he obeyed a Sunday school teacher. तो वो अपने संडे स्कूल की टीचर का जो है शिक्षिका का आज्ञा मानता था। So every day when he wake up, he will pray. तो जब कभी वो जाग उठता था, प्रार्थना करता था। And when he eat, he will pray. और जब कभी वो खाना खाता था, प्रार्थना करता था। And when he sleep, he will pray. और जब कभी वो सोने जाता था तो As it become habitual, तो ये उसकी एक आदत सी बन गई थी। so one day he thought, तो एक दिन वो एक बार उसने सोचा so what happened was in the morning prayer, when he wake up, he write down the prayer, same prayer that usually he pray. So he wrote down and then he pasted. और एक दिन जब सुबह उठा तो जैसे ही वो प्रार्थना करता था, उसने उन प्रार्थना को लिख दिया और दीवार पर उसे टांग दिया। And then for the food where he faced this side, so he pasted there. हाँ, जब कभी वो खाना खाता था, जो प्रार्थना करता था, उसको भी उसने इस दीवार के ऊपर टांग दिया। And as it is for the night prayer. और वही उसने रात्रिकाल की प्रार्थना में भी किया। So when he wake up, जब कभी वो जाग उठता, Lord, this one. प्रभु ये है। Because he was sitting down and whatever prayer that he usually prays, so he wrote down and said, Lord, that one. जो कुछ वो प्रार्थना करता था वो उसने लिख दिया और वो उसने उस दीवार के ऊपर में टांग दिया, कहा कि ये है। And then when he come for the food, he said, Lord, that one. और जब कभी वो उस खाने के भोजन के समय आता और कहता कि प्रभु ये है। Because he don't want to pray anymore. क्योंकि वो अब आगे प्रार्थना करना ही नहीं चाहता। And then when he sleep, he will say again, Lord, this one, I'm going to sleep. और जब कभी वो सोने जाता कहता प्रभु यही है, मैं सोने जा रहा हूँ। What I want to see is when we continue to come to the church, it becomes like a what? Ritual system. तो मैं ये क्या कहना चाहता हूँ आपसे कि जब कभी हम लगातार कलीसिया में आते हैं, एक प्रकार से ये एक औपचारिक या फिर एक रीति रिवाज बन जाता है। As a believer, we should not be. We must be thankful to God. एक विश्वासी होने के नाते हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सदैव परमेश्वर के संगति में या उसकी उपस्थिति में जाना चाहिए। Same thing happened to the people of Israel, where the also describing the people of Israel how they behave when they come to the worship. और यही जो है परमेश्वर के जन इन इस्राएली लोगों के साथ में हो रहा था कि वो जब कभी आते इसी प्रकार का कार्य वो अपने जीवन में करते। And verse 7 and 8 it says, that hear, O my people, and I will speak, O Israel, and I will testify against you. I am God, your God. And then verse 8 it says, last part it says, okay, all your burnt offering, which are continually before me. That means they were smart enough. They were never neglecting their sacrifice. They continue to bring their offering. और ये लोग जो है वे हमेशा अपने उन बलिदानों को परमेश्वर के सन्मुख में लगातार लेकर आया करते थे। They continue to sacrifice what God required for them. और वे जो कुछ परमेश्वर ने उनसे मांग की थी वे लगातार उस बात को करते जा रहे थे, अपना बलिदान लेकर आते जा रहे थे। I shall read once again the verse 8. मैं फिर से उस 8वीं आयत को आपके सम्मुख में पढ़ूंगा। I will not reprove you for your sacrifice or your burnt offering, which are continually before me. I will not take a bowl from your house. मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता, तेरे होम बलि को तो नित्य मेरे लिए चढ़ाते हैं। And when we go through the verse, we see that everything that we have seen is from God. और हम जब कभी उसमें आते हैं देखते हैं कि जो भी बातें हैं वो केवल परमेश्वर के लिए है। Verse 12 says, "If I were hungry, I would not tell you." 12वें आयत में लिखा हुआ है, यदि मैं
think that whatever they bring offering, they are trying to help what? They please God. और ये है कि जो कुछ भी उस बलिदान के लिए लेकर आते थे, उनका उद्देश्य था कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करें। What happened was, it's like whatever offering bring, God must be thankful to the people. Seems to be like that. Instead of they are thankful to God, they feel that God must be thankful to them because they brought the sacrifice. अब वो ये चाहते थे कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के बजाय परमेश्वर उनको प्रसन्न करे, क्योंकि वो सारा कार्य परमेश्वर के लिए करते थे, जो भी कुछ है बलिदान। But God is not expecting this. लेकिन परमेश्वर इस बात की इच्छा उनसे नहीं कर रहा था। It says, verse 14, offer to God thanksgiving and pay your vow to the Most High. Call upon me in the days of trouble, I will deliver you, and you shall glorify me. 14 और 15 में आयत लिखा हुआ है, परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। See what we understand from this verse. तो हम इस आयत से क्या सीखते हैं? Not simply coming, but we must be what we come to the church. Our worship should be what? With thankful heart. तो हम इससे क्या सीखते हैं? जब कभी हम कलीसिया में आराधना के लिए आते हैं, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होनी चाहिए। God did not especially come in and here showing our number or our head. अब परमेश्वर केवल हमारे कलीसिया में हमारे उन गिनती को या उन स्वरों को नहीं देखता, But God look at how you worship. लेकिन परमेश्वर इस बात को देखता है कि आप कैसे आराधना करते हैं। I remember our principal, he said, our standards should not be set by the church. Our standard of holiness should not be set by the church, but God. मुझे स्मरण आता है, हमारे प्रिंसिपल इस बात को कहते हैं कि हमारा जो रहन सहन है या हमारा जिस प्रकार का एक भाव है, वो कलीसिया के आधार पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। God is expecting that we should be thankful not to the only not in front of the people. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम जो है किसी के द्वारा नियंत्रित किए जाए। God also says, though our worship not be up to the expectation, but still He said that call unto me in the day of trouble. See, look at how our God is. उधर समय में भी कहता है कि उन संकट के समयों में भी मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं उसका नाम लूंगा। Verse 15 is very clear. Call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you shall be glorify me. यहाँ वचन में या परमेश्वर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। He wants us to worship true and sweet, and then when we call Him, He is ready to help us in trouble. परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ हम उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें और अपने जीवन में आशीषों को पाएं। Friends, मित्रों, let us worship God not only by the ritual system, not because of a Sunday, but let us worship wherever we are. Be thankful to God. मेरे प्रियो, हमारी आराधना एक औपचारिकता में ना हो जाए, पारंपरिक रूप में ना हो जाए, लेकिन आत्मा और सच्चाई के साथ में मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। And Lord is against hypocrisy in living. परमेश्वर एक ऐसे पाखंडपूर्ण जीवन के विरोध में रहता है। Here we see that not because of the their sacrifice, but we see the character of the people of Israel. अब यहाँ पर मैं उनके बलिदान के कारण नहीं, लेकिन उन इस्राएलियों का जो मनोभाव या उनका जो चरित्र था उसके कारण। So when we look at the verses from 16 onward, from 20 up to 21, so we see that the people who were very good in front of the people, but what? After that they were doing the deceiving all kinds of things, character they did. हम 16 से लेकर तो 21वीं आयत में हम देखते हैं वे लोग जो लोगों के सामने में बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करते थे, अपने जीवन को प्रदर्शित करते थे, लेकिन पीठ पीछे उनका जीवन उस प्रकार नहीं था। Verse 7 says that seeing you had the instruction and cast my word behind you. 16. लिखा हुआ है, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? See, here we say that the people in front of the people very humble. Pastor, लोगों का एक होता है जब सबके सामने या पासवान के सामने में अपने आप को बहुत ही नम्र, हलीम और दीन दिखाते हैं। But when the pastor left, right, something like a character should be there. So this is what happening here. और फिर जब पासवान चला जाता है या फिर वो पासवान चले जाते
last part it says that God will bless the who worship the truth. और उसका अंतिम भाग ये कहता है कि परमेश्वर उन लोगों को आशीषित करता है जिसकी आराधना सही है। It is connected with the third point. It is the hypocrisy living. अब ये जो तीसरे बिंदु से संबंधित है कि एक पाखंडपूर्ण जीवन जीना। Who are living with a hypocrisy living? This part says, he said, now consider this. If you forget God, I will tear you in pieces. और कौन है जो इस प्रकार के पाखंडपूर्ण जीवन जीता है? कह रहा है कि This one 22. 22 आयत में कि हे परमेश्वर को भुलाने वालों, यह बात भली भांति समझ लो कि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। Look at here how God, word of God says. There is a warning that all of us. अब देखिए यहाँ पर में परमेश्वर का ये वचन क्या कहता है? ये हम में से हर एक के लिए है। Be thankful to God. हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना चाहिए। Don't be hypocrisy in front of people. अब लोगों के सम्मुख में उस प्रकार की पाखंडपन न बने रहो। In our worship, हमारी आराधना में, in our character. हमारे चरित्र में God expects that we must worship true and spirit, and we should be all right in our character. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आराधना में सच्चे बने रहे और अपना चरित्र भी सही बना के रखें। And then 23 last part it says is the blessing of God. It says, who of our flesh glorify me, and to him who ordered his conduct all right, I will show the salvation of God. This is the blessing of God. अभी यहाँ पर जो 23वीं आयत में है उसका एक निचोड़ यहाँ दिया गया है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। Dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, so we have learned from here. We have learned from this psalm हमने इस भजन से ये सीखा है that God expects the thanksgiving from our heart. परमेश्वर हमारे हृदय से उन सच्ची बातों को जानना या समझना चाहता है। He wants us to call him. He wants us to call him when there's the day of trouble. वो चाहता है कि हम संकट के दिनों में, समय में हम उसको पुकारें। God is ready to help us. परमेश्वर हमेशा तैयार है हमारी सहायता और मदद करने के लिए। Only thing is that we should be thankful to him. बात केवल इतनी है कि हम परमेश्वर के प्रति सदैव धन्यवादी बने रहे, And we must be thankful to him. और हम हमेशा उसके प्रति धन्यवादित रहे। And then how can we be in right relationship with him? और कैसे हम उसके साथ में सही बने रह सकते हैं? We should have good relationship with our neighbors. हमारे संबंध जो है हमारे पड़ोसियों के साथ सही रूप में हो। Backbiting will not allow. इसी प्रकार की कोई चुगली या हमारे जीवन में ना हो। This is my prayer. ये मेरी प्रार्थना है। May we be a faithful worshiper of God. कि हम एक परमेश्वर के एक विश्वास योग्य आराधक बने। Not only to please the leaders, केवल अगुओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं, not only to please the neighbor, या हमारे पड़ोसियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं। let us please God by worshiping truly and spirit. This is what Jesus also says. आइए हम अपनी उस सच्ची और आत्मिक आराधना से हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कही थी। Jesus said, यीशु ने कहा, if you worship, we have to worship truly and spirit. यदि अगर आप आराधना करना चाहते हैं तो आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें। May good God help each one of us to worship truly and spirit. वे अच्छा परमेश्वर हम सबों की सहायता मदद करें कि हम परमेश्वर की एक सच्ची आराधना कर सके। Thank you so much for your kind attention. May God bless you. Thank you. Thank you. Amen. The third speaker of this hour is Reverend Rajesh.